Hello everyone, I am Archit and I am welcoming you all in the mains headquarter by Study Smart ISPCS। तो इस लेक्चर सीरीज में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आर्ट एंड कल्चर फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। राइट, हमारे इस पूरे डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि किस तरीके से लिमिटेड टाइम फ्रेम में हम अपने इस पूरे के पूरे मॉड्यूल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप कर ले। करेक्ट। Now, before I jump to the core discussion of your syllabus, I am going to tell you two to three things. First, why we need to give some extra focus to the art and culture module. That is point number two. Point number one. Your point number two is going to be from where we are going to study this particular part, like how your study should be, on which resource you need to rely, how am I going to help you. Point number three, how this entire lecture series is going to proceed in upcoming time frame, right? And point number four, what are those things that I'm going to cover and how I am going to teach you or rather help you in order to write better answer in your mains examination, right? Because covering the syllabus is one part and writing good answer in the mains examination is another part, right? So this lecture series is focused on these two things, right? We will try to cover up the entire syllabus. We will also try to cover up the PYQs. We will also cover the current affair parts related to this particular module, right? And on the basis of that, we will also see the probable question, right, that may come in your upcoming examination, and how you can write, finally, how you can write a good answer. What should be your ideal answer template, right? A good intro and a conclusion for each and every topic, right? So that's how we are going to proceed in this entire lecture series. So, before, again, as I told you, before I jump right to the discussion, our point number one, what is the role of art and culture in your mains examination? Correct. So, on the basis of PYQ, correct, because this is the guiding torch in our entire mains journey. So, on the basis of PYQ, I can say minimum of 30 marks and maximum of 40 marks questions are centered around this particular module, right? So, if you prepare it well, the ROI of this particular part is very high, and out of 30 to 40 marks, you can easily fetch 20 plus marks, right? Which is going to serve you as a foundation in order to get triple digit marks in your GS paper 1. Correct? Now, moving on, if we try to give little bit extra focus on this particular module, so you know what we will see in past 10 years from 2013 to 25, what you will see that the total number of questions that are asked from art and culture is 33 to 34. A modern history देखिए तो 31 to 32, which means number of question art and culture से ज़्यादा पूछे गए हैं modern history के comparison में, right? So this entire calculation of number of question itself shows the weightage of this module. And what happens or what kind of a mistake we often make during preparation is कि हम अपनी सारी की सारी एनर्जी मॉडर्न हिस्ट्री के अराउंड लगा देते हैं. आई एम नॉट सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू कवर अप दिस पार्ट. Yes, you need to study modern history properly, but you need to bifurcate your time and give each and every module of your GS paper properly, right? So now, since we have got to know that what is the weightage of this particular module and how it is going to help you fetch good marks in GS paper 1. Now the second part, how we are going to prepare it, correct? So as I have told you, although each and every year you will see around 3 questions in your GS paper 1, and for solving those 3 questions you need to prepare very few topics, very limited topics, right? Why? How we reach to this particular discussion or rationale on the basis of PYQ analysis. And in order to study or in order to learn, in order to understand these topics,
you need to read very limited resource, right? Again, this is the point where I am going to help you. If you follow this lecture series properly and you follow the notes given by us, right? And this is the notes, the same thing you are seeing on the screen, the same notes will be provided to you. On the basis of these two things, I can assure you that you can answer each and every question in your upcoming mains examination, right? So one thing we understood, that we can solve these three questions by preparing very limited topic, right? So since you have very limited topic, you can revise it multiple times, hence it will give you maximum return. Got it? The next good thing about this particular topic is, if you analyze the previous year question, what you will see, that questions are repeated multiple times. Like from the Chola Empire or the Chola architecture, UPSC asked UPSC repeated itself thrice in 2013, then in 22, then in 24, right? Similarly, the rock cut architecture in 15, in 19, then in 2022. Then from the Bhakti movement and Bhakti literature in 2012, then in 19, then in 21, right? So the repetition matrix is very high in this particular module. Why? Because again and again, I'm telling you, very limited topics are there, right? So since the topics are limited, hence, what is the result? Repetition is very high, right? Apart from the repetition of core topic, there will be topic that are asked in your examination once, right? For example, in your previous year question paper, you will see there are topics that were asked just once, like the religious syncretism of Akbar, right? Or the relevance of bull and lion motif in our architecture, or the question framed around Krishna Deva Rai, right? Now, all these questions are not random, rather, they are related with the current affair, correct? So, the question on Akbar was asked on the 450th anniversary of this Sulh Kul and Deen Ilahi. Bull and lion motive was asked when the new parliament building was inaugurated. Krishna Deva Rai was asked on the 500th anniversary. So what we are seeing here, if we give a little bit focus to the current affair, correct, we can easily judge what are those areas from where UPSC is going to frame the question, correct? So you can also predict, you can easily predict the random questions as well. That is why I am telling you, if you give little bit focus to this module, you can easily fetch 20 plus marks out of 40. Got it? So on the basis of this entire discussion, I have uh, divided this entire lecture series in few core part, right? So first and foremost, we are going to study about the architecture, right? In the architecture, we will study the architecture of Indus Valley, the Mauryan architecture, Gupta, the temple, entire temple architecture, cave architecture, right? Indo-Islamic architecture, Mughal architecture, each and everything in a very detailed and a very focused manner, right? Then we are going to study about the cave paintings. Then we will study about the religion and philosophy, like Bhakti and Sufi movement, Buddhism and Jainism, Indian philosophy and its relevance to the art and cultural development in India. Then we are going to study about the society part. Then obviously the education and literature, and further art and painting, right? Apart from that, I am also going to discuss the current affair part as promised. So under this part, obviously, current affairs topic like Marathas, military architecture, or Vande Mataram, or 500 year of Tulsidas, all those things, right? We will discuss each and everything in detail, correct? And also, in the last, after finishing each and every topic, I will also give you a better way of starting the your answer, how you are going to conclude your answer, what is going to be the main template of your answer as well, right? Because writing good answer
is our core, focus, right? No matter how we study, no matter what we study, ultimately you are going to sit in the classroom and write the answer. So if we are able to write a good answer, everything is okay, right? So on this note, let's start our first topic, that is the architecture. And under this architecture, we are going to study about Indus Valley civilization, right? Now, let me remind you, this is not the discussion of prelims, right? Here we are discussing for the mains examination, right? So the pattern of discussion is going to be changed little bit, correct? So before we start discussing this part, let's start with the PYQ. This is the best way to cover up entire topic. So if we talk about the PYQ, do you know what is the question that was asked in 2025 mains? The question was, discuss the salient feature of the Harappan architecture. That's it. This was the question of 2025 mains examination, right? Moving forward, the another question that was asked from this particular part, it was in probably the year of 2015, right? 2015. So in 2015, the question was that the ancient civilization in the Indian subcontinent, right? It was contemporary to the Egypt, Mesopotamian, and the Greek, right? So how we have carry forward our cultural legacy, right? From the Indus Valley civilization till now. So the question was framed around the cultural continuity of Indus Valley civilization, correct? Then another question that was asked in 2014 mains, and it was about the urban planning, right? Urban planning of Indus Valley civilization, correct? So in preliminary, what we study about the smaller details, right? The two rows of a granary, from where we got the mother goddess, right? How the division of the town is there, right? From where we got the bronze figurine and each and everything, correct? But here, instead of core fact, we need to focus on analysis part, right? Because that's how UPSC is framing its question, correct? So let's start our basic discussion about the Indus Valley civilization. We all know, हम सभी को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बेसिक टाइमलाइन हम लेते हैं कि भाई 2500 BC से लेकर के 1800 या 1600 BC तक ये सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फ्लरिश करी, राइट? ये एक ट्राइंगुलर यहां पर एरिया बनता है, करेक्ट? जहां पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश की थी, करेक्ट? और राखालदास बनर्जी, शुरुआत में ये लोग जाकर के एक्सकेवेशन करते हैं, पहले हड़प्पा का, फिर मोहनजोदाड़ो का, देन कम्स रोपर, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर एंड ऑल, और फिर धीरे धीरे करके पूरी की पूरी एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी निकल करके सामने आती है, राइट? बट नाउ हियर वी आर फोकसिंग ऑन दी आर्किटेक्चर पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक? तो अगर हम सबसे पहले आर्किटेक्चर पार्ट के ऊपर ध्यान दें, राइट? आर्किटेक्चर पार्ट के ऊपर यदि हम ध्यान दें तो क्या दिखाई देता है? इफ वी फोकस ऑन द कोर आर्किटेक्चरल एलिमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो हुआ ये कि जब एक्सकेवेशन किया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, देन व्हाट वी गॉट टू नो अबाउट दिस इंटायर सिविलाइजेशन, द एक्सकेवेशन शोकेस्ड कि ये जो पूरी सिविलाइजेशन थी, इट वॉज अ अर्बन सिविलाइजेशन, राइट? सबसे जो मेन पार्ट निकल करके आया कि एक अर्बन सिविलाइजेशन बनकर के उभरती है उस टाइम पीरियड में, एंड it showcased that this entire civilization was designed by the expert town planner and engineers, right? अब इसके बाद जब एक्सकेवेशन किया गया तो ये देखा गया कि टाउन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तरफ सिटाडेल है और एक तरफ लोअर टाउन, राइट? अब एक एक करके हम डिस्कस ये करते हैं कि ये जो आपका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर था, इसकी
कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, राइट? तो अगर हम एक एक करके कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करें, राइट? सो फर्स्ट थिंग जो हमारा एक ध्यान खींचती है हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में, इट इज द टू पार्ट डिवीजन ऑफ द एंटायर टाउन, राइट? किस तरीके से कि द अपर पार्ट इट वाज नोन एज द सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट वाज नोन एज द लोअर टाउन। अब ये जो अपर पार्ट है ये आपका वेस्टर्न साइड पर प्लेस था और ईस्टर्न साइड पर आपका लोअर टाउन पाया जाता था, राइट? तो यहां पर हमने एक अंदाजा लगाया कि जो स्टेट की बिल्डिंग है, राइट, जो स्टेट की बिल्डिंग है, लाइक ग्रेनरीज, लाइक पिलर्ड हॉल, राइट, लाइक कोर्टयार्ड्स, ये सारी की सारी चीजें सिटाडेल पे बनी हुई हैं। और जो वन चैम्बर्ड या टू चैम्बर्ड रूम है प्रोबेबली फॉर द वर्किंग क्लास, वो आपके लोअर टाउन की तरफ बने हुए हैं, राइट? अब यहां पर दूसरी चीज या अगली चीज क्या देखने को मिलती है कि अब अगर हम अपने पूरे टाउन का एक एक करके आर्किटेक्चरल फीचर देखें, तो सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है वो ये कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में स्टैंडर्ड ब्रिक साइज यूज करी गई हैं, दैट इज 1:2:4, राइट? अच्छा, यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो लोग ड्राइड ब्रिक्स का यूज करते थे, राइट? जो क्या कहते हैं, बट हमारे यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है, दैट वी आर यूजिंग अ फुल्ली बेक्ड ब्रिक्स, बर्न्ड ब्रिक्स, राइट? और ये जो रेशियो है 1:2:4, ये कॉमन है, एक यूनिफॉर्मिटी है, राइट? अगर आप पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सटेंट को देखें तो भाई इधर अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ जम्मू तक, राइट, और यहाँ पर बिल्कुल नीचे गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर तक ये जो फैला हुआ आपकी सिविलाइजेशन है, हर एक जगह पर आपको सिमिलर साइज मिल रही है, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, राइट? द नेक्स्ट थिंग वी सॉ was अबाउट द सिटी प्लानिंग। अब सिटी प्लानिंग में क्या था कि पूरी की पूरी जो सिटी थी वो ग्रिड प्लान के ऊपर बेस्ड थी, राइट? ग्रिड प्लान का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रीट्स हुआ करती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही थी, करेक्ट? बात समझ में आ रही है? इसके साथ के साथ, और ये सारी चीजें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हर जगह ये दिखाई दे रही हैं। अब ये जो ग्रिड प्लान है ये क्या चीज दिखा रहा है कि अच्छी तरीके से चाहे गुड्स हो या लेबर हो उनका बेटर मूवमेंट हो सके, अर्बन जो ग्रोथ है वो प्लान है, राइट? और आपकी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है टाउन का वो एक बेटर या ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, हेंस ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी को शोकेस कर रहा है, राइट? इसी तरीके से जो सिटाडेल हमने सबसे पहले बताया कि भाई सबसे पहली चीज हमारी सिटाडेल पर दिखाई देती है, तो चाहे वो मोहनजोदारो का हो या अपर टाउन ऑफ धोलावीरा का हो, राइट? तो यहाँ पर हमने बताया कि ये पता चल रहा है कि जो स्टेट ओन्ड बिल्डिंग है वो सिटाडेल पर बनाई गई है, राइट? बट यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती हैं कि दो तरीके के हिस्टोरियन है, कुछ लोग बोलते हैं दीज आर द रिचुअलिस्टिक स्पेसेस, राइट? And there are few people they also argue कि there is a hint of probable hierarchy, right? But overall लोगों का यही मानना है कि जो houses है mostly they are uniform in Indus Valley civilization, तो जो हायरार्की का सिस्टम है वो एक तरीके से एब्सेंट रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, राइट? नाउ इसके बाद अगर हम बात करें अगले फीचर की, तो ग्रेट बाथ और पब्लिक वेल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर, राइट? ग्रेट बाथ और पब्लिक वेल्स से हमें क्या पता चलता है, चाहे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो से, कि सोशल कोहेजन थी वहां पर, राइट? जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज थी उसमें लोग इकट्ठे भाग लेते थे, और साथ के साथ एक पब्लिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी काम कर रहा था, राइट? लोगों की कलेक्टिव हेल्थ और कलेक्टिव नीड पर फोकस किया जा रहा था, राइट? नेक्स्ट आर्किटेक्चरल फीचर क्या आता है, विच इज अ बेटर ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम। अब ये जो बेटर ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम है ये आपकी ये जो राइट एंगल स्ट्रीट्स है उनके अलोंग बनाया गया है, और साथ के साथ इन्हें कवर किया गया है स्टोन स्लैब के साथ, करेक्ट?
सो इस चीज से, इस आर्किटेक्चरल फीचर से हमें क्या पता चलता है, राइट, दैट दे वर वेरी मच फोकस्ड अराउंड देयर हाइजीन, देयर सैनिटेशन, राइट। और यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि अगर स्टेट का इन्वेस्टमेंट पब्लिक गुड्स में नहीं होगा तो आप इतने अच्छे फीचर्स को मेंटेन नहीं कर सकते, राइट। कि जहां पर आपका ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चल रहा है, बीच बीच में आपको मेन होल्स भी मिल रहे हैं जिसे खोल करके साफ किया जा सके। नेक्स्ट इज कि हमें ग्रीनरी और वेयर हाउसेस मिलते हैं, ऑब्वियसली स्टेट ओन्ड बिल्डिंग का उदाहरण चाहे ग्रीनरी ऑफ मोहनजोदारो हो या ग्रीनरी ऑफ धौलावीरा। इससे क्या पता चलता है भाई, आप चीजों को इकट्ठा तब करोगे ना जब आपके पास सरप्लस होगा, राइट। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस है, इसका मतलब कि आप एक डेवलप्ड स्टेट में हैं, राइट। अब आज की रिक्वायरमेंट को पूरा तो कर रहे हैं, आने वाली जो भविष्य है या कोई नेचुरल डिजास्टर आए उसके लिए आपके पास एक बफर स्टॉक भी सेव्ड है, राइट। और ये जो ग्रीनरी है ये सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज के तौर पर भी काम कर रही है, प्राइस स्टेबलाइजेशन के तौर पर भी, कि अगर धान की कमी हो गई, राइट, व्हीट की कमी हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने बफर स्टॉक से निकाल करके मार्केट में डाल सकते हैं, जस्ट लाइक मॉडर्न इकोनॉमी, राइट। Also it shows the advanced level of trade as well as tax collection। बात समझ में आ रही है, ठीक। Moving on to the next architectural feature, that is the presence of dockyard in Lothal। अब ये जो लोथल का डॉकयार्ड है ये क्या चीज दिखा रहा है कि जो मैरीटाइम ट्रेड था इट वाज वेरी हाई and very matured during the time of Indus Valley civilization, right। और अब तो हमको ये भी पता चल गया है कि भाई हमारा जो पूरा का पूरा ट्रेड था वो यहाँ से चल के ईरान, फिर उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान, मेसोपोटामिया तक निकल करके जाता था, और वहीं से हमें पता चला कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे मेलुहा के नाम से जाना जाता है, राइट। द नेक्स्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ आईवीसी इज द धौलावीरा, राइट। धौलावीरा का क्या, वाटर कंजर्वेशन, राइट। तो धौलावीरा में हमें 16 रिजर्वायर मिलते हैं, करेक्ट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका जो आर्किटेक्चर है इट इज अडेप्टिव टू द लोकल एनवायरमेंट, करेक्ट। और इसकी वजह से दे वर वेरी गुड इन देयर रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट। because water is important not only for your agriculture but for your industry, for general public, each and everything। तो हर जगह की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अपने जो आर्किटेक्चरल फीचर्स थे उसको भी इवॉल्व किया, राइट। बात समझ में आई। तो फटाफट से अगर हम लोग देखें तो हमें क्या समझ में आया कि अगर क्वेश्चन आए कि कोर आर्किटेक्चर फीचर क्या क्या है तो हम स्टैंडर्ड ब्रिक साइज बताएंगे जिससे हमें यूनिफॉर्मिटी और एक सेंट्रल गवर्नेंस के बारे में पता चलता है। ग्रिड पैटर्न के बारे में हम लोग फटाफट से लिख देंगे। सिटाडेल के बारे में लिखेंगे जहां पर स्टेट ओन्ड बिल्डिंग थी, लोअर टाउन में मोस्टली हाउसेज हुआ करते थे। ग्रेट बाथ, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, कलेक्टिव हेल्थ के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम, स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट के बारे में, हाइजीन के बारे में, ग्रीनरी के बारे में, एग्रीकल्चरल सरप्लस, डॉकयार्ड, बेटर मैरीटाइम ट्रेड एंड वाटर कंजर्वेशन which is the adapted to the local climate। ये हम कोर आर्किटेक्चरल फीचर भी लिखेंगे, कहां कहां पर पाए गए ये एग्जांपल भी अपन कोट कर देंगे, और साथ के साथ उनसे क्या पता चल रहा है ये बात भी हमने समझ ली, ठीक। अब अगर हम ओवरऑल ये जानना चाहें, लेट्स से कि वो ये क्वेश्चन पूछे आगे चल करके, क्योंकि यूपीएससी का जो कोर फोकस है इट इज ऑन एनालिसिस। तो अगर एनालिसिस बेसिस पर वो ये पूछना चाहें कि भाई ये जो आपके आर्किटेक्चरल फीचर है ये हमें सोसाइटी के बारे में क्या बताते हैं, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सोसाइटी थी वो एक्चुअल में थी किस तरीके की, राइट। तो पहली चीज जो हमें पता चलती है वो ये दैट इट वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, करेक्ट। एंड दूसरी पॉसिबली नॉन हायरार्किकल, राइट। वहां पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जिसको हम किंग या रूलर के तौर पर देख सकें, राइट। चूंकि हमें यूनिफॉर्म हाउसिंग मिलती है, बड़े बड़े ग्रैंड पैलेसेस दिखाई नहीं देते हैं, करेक्ट। तो इनसे हमें यह पता चलता है कि एक कलेक्टिव गवर्नेंस का फॉर्मेट होगा, ना कि मोनार्किक रूल का, राइट।
यहीं पर मैंने बताया कि सिटाडेल के ऊपर जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है दैट आर स्टेट ओन्ड बिल्डिंग, राइट। और लोअर टाउन में क्या है, मोस्टली हाउसेज है। अब ये जो स्टेट ओन्ड बिल्डिंग है, जैसे कि ग्रेट बाथ ही अपना अपन हम ले लें, राइट, तो ये सभी लोग यूज कर रहे हैं फॉर द रिचुअल, राइट। तो इसका मतलब जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव गवर्नेंस का सिस्टम है। अदरवाइज सिटाडेल पे आपको बड़े बड़े महल दिखाई देते, ना कि स्टेट ओन्ड कॉमन बिल्डिंग्स, करेक्ट। दूसरी चीज जो हमें सोसाइटी के बारे में पता चलती है, इट इज द एडवांस इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन। किस तरीके से कि हमें अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज मिलती है, बीड मेकिंग इंडस्ट्री हो गई, भाई मेटलर्जी हो गया, कॉटन वीविंग इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि हमें हर कॉटन के कपड़ों का प्रमाण मिला है, राइट। डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। तो ये एक बेटर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की छवि देखने को हमें मिलती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट we understand from the architectural point of view about the society of IVC कि जो स्टेट है उसका इन्वेस्टमेंट पब्लिक वेलफेयर में है। भाई ड्रेनेज बन रहे हैं, पब्लिक बाथ बन रहे हैं, वाटर स्टोरेज रिजर्वायर की व्यवस्था धौलावीरा में करी गई है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि स्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसकी तरफ है, सिविक एमिनिटीज की तरफ है, राइट। जस्ट लाइक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट क्या है कि भाई जो पब्लिक की नीड है, पब्लिक पाथवे है, पब्लिक सीवेज सिस्टम है, पब्लिक टैप वाटर कनेक्शन है, इन सब की जिम्मेदारी सरकार की है। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज ट्रेड लिंक प्रॉस्पेरिटी, करेक्ट। प्रॉस्पेरिटी तो है बट वो ट्रेड से लिंक है। भाई प्रॉस्पेरिटी तो हमें इसी से पता चल जा रही है ना कि हमारे पास एग्री सरप्लस है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ हमें डॉकयार्ड भी लोथल में मिल रहा है, राइट। इसके अलावा पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम और मेजरमेंट सिस्टम मिलता है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो हेक्साडेसिमल सिस्टम पर काम करती थी, राइट। और अगर अभी भी आप गांव में जाएं तो वहां पर हेक्साडेसिमल सिस्टम आज भी कॉमन है, राइट। इट इज, यू कैन ऑल्सो राइट इन कल्चरल कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, गॉट इट। तो जब गांव में आप लोग 16 आने की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल सिस्टम ही है, राइट। एंड द नेक्स्ट इज एनवायरमेंट अडाप्टेशन। भाई रिजर्वायर बन रहा है, वहां की लोकल क्लाइमेटिक नीड को देखते हुए हमने अपने आर्किटेक्चर को इवॉल्व किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से देखने को हमें मिल रही है। बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो जो आपके मोहनजोदाड़ो की जो नालियां हैं दैट आर स्टिल वर्किंग, वहां पर पानी नहीं बढ़ा, वो निकल करके चली गई। तो आज से जब 2500 बीसी में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो आज तक वर्किंग है, राइट, इट इज शोइंग द हाइट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट वाज देयर ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, करेक्ट। तो अगर क्वेश्चन आए कि आपको सोसाइटी के बारे में क्या जानकारी मिलती है आईवीसी का आर्किटेक्चर देख करके, राइट, सो यू कैन राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आज के समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्चर है या जो भी हमें बिल्डिंग मिल रही है उसकी रेलेवेंस क्या है, हम सीख क्या सकते हैं, करेक्ट। तो एक एक करके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट, कि जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम हो वो कवर्ड हो, रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बना हो, जस्ट लाइक मोहनजोदारो, ठीक। तो अगर हम इस तरीके का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं जो 2500 बीसी में बना और आज भी वर्किंग है, राइट, तो हमारे यहाँ पर हर साल जो अर्बन एरियाज में बाढ़ आती है, चाहे बॉम्बे की फ्लड हो, गुड़गांव की फ्लड हो, हम बेटर तरीके से सब सरफेस ड्रेनेज नेटवर्क बना सकते हैं फ्लड प्रोन एरियाज में, राइट। नेक्स्ट इज वाटर स्कार्स एरियाज। जिस तरीके से धौलावीरा में 16 रिजर्वायर मिले हैं, हम चेक डैम्स बना करके, राइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जो हमारे ये क्या कहते हैं सूखा या ड्रॉट प्रोन एरियाज है राजस्थान या गुजरात के, वहां पर हम अपने वाटर रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, राइट। स्पेसिफिकली जैसा अभी सरकार की तरफ से सौराष्ट्र रीजन में
वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, राइट। द नेक्स्ट थिंग वी कैन लर्न इज द सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, जो कम्युनिटी वेल थी, सीवर लाइन थी, राइट। आज भी सरकार की जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जिसमें हम गांवों को ओडीएफ फ्री बना रहे हैं, और ओडीएफ फ्री ही नहीं बना रहे हैं बल्कि ओडीएफ प्लस प्लस जो स्टेटस है उसके अंदर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट, और जो भी आपके अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पर प्रॉपरली किस तरीके से वर्किंग टॉयलेट्स बनाए जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, राइट। देन what we can also learn is the inclusive planning. Inclusive planning का क्या मतलब हुआ कि जो civic amenities थी that was open for each and everyone, right? जो ग्रेट बात बनाया गया, वहां तक एक्सेसिबिलिटी हर एक वर्ग की थी। जो हाउसिंग है वो यूनिफॉर्म है, कुछ जगह पर डबल स्टोरी बिल्डिंग मिल रही है बट ओवरऑल यूनिफॉर्म हाउसिंग दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा सा फोर्ट है और उसके अराउंड छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, राइट। तो जो प्लानिंग है वो हर वर्ग को समाहित कर रही है, इंक्लूसिविटी दिखाई दे रही है अपने को, राइट। तो हमें भी अपनी हाउसिंग फॉर ऑल की जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर हमें और बेटर स्टैंडर्डाइज और अफोर्डेबल बिल्डिंग बनानी चाहिए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट की जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हड़प्पा 2.0 एक 3D रिकंस्ट्रक्शन ऐप आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाई गई, जिसमें हम एक तो वर्चुअल टूर कर सकते हैं, साथ के साथ इन पुरानी सिटीज का डिजिटल ट्विन मॉडल प्रिपेयर करके, राइट, हम अपनी मॉडर्न सिटी को फ्रेम कर सकते हैं। कहते हैं द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया दैट इज द चंडीगढ़, राइट। इस चंडीगढ़ को बनाने के लिए जो बेस लेआउट था दैट वाज कॉपीड और रादर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम मोहनजोदारो, राइट। इसके साथ के साथ अगर हम मॉडर्न रिलेवेंस की बात करें अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग, सो दैट इज हेरिटेज टूरिज्म, राइट। रिसेंटली जो भी मेजर साइट्स हैं दैट आर प्रोटेक्टेड अंडर यूनेस्को, तो अगर हम उनको बेटर तरीके से डेवलप करें और एक हेरिटेज सर्किट बनाएं तो हड़प्पा, मोहनजोदारो और इंडियन साइट चाहे लोथल हो, चाहे धौलावीरा हो, कालीबंगा हो, इससे लोकल इकोनॉमी को आज भी बूस्ट मिल सकता है, राइट। और लोगों के अंदर अपने इतिहास को जानने और समझने की जो हैबिट है वो बढ़ेगी एंड वी विल एबल टू मूव फॉरवर्ड इन अ मच बेटर मैनर, राइट। इसके बाद अगर हम एक और एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करें, which is what are the policy level recommendation of GOI that are inspired by Indus Valley civilization? What if UPSC frames its question around it? So yes, you can obviously write about the above discussed schemes of government of India, but other than that, there is a scheme, National Water Conservation Mission. Now, this particular scheme is modeled around Dholavira's Cascade reservoir system, right? जहां पर क्या किए गए कम्युनिटी बिल्ट टैंक बनाए जा रहे हैं सेमी एरिड और एरिड एरियाज में, राइट। सिमिलरली देयर इज अर्बन सैनिटेशन ब्लूप्रिंट। अब चाहे स्मार्ट सिटी मिशन हो, राइट, इन सब के अंदर चाहे आपका अर्बन मिशन हो जहां पर हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, राइट, एंड वी आर ट्राइंग टू कॉपी अ सिमिलर स्टोन स्लैब और कवर्ड रादर a drainage system in our modern cities, right? Then there is a heritage driven economic zone. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्क हैं, जो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या इंटरप्राइजेस हैं दैट आर डेवलप्ड अराउंड इंडस्ट्रीज लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक बीड मेकिंग, मेटलर्जी, हम उसे डेवलप करने की, लोकल क्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं in the form of MSME cluster, right? Also, we can work on cross-border cultural diplomacy, which means कि जो दो मेजर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की that are considered as the two capital of Harappan Indus Valley civilization, that is Harappa and Mohenjo-daro. Both are in Pakistan, right?
So, in order to enhance the trade and the tourism, the cross-border tourism, and by enhancing the tourism, enhance the people-to-people connect. गवर्नमेंट ने इंडस हेरिटेज ट्रेल मई 2024 में लॉन्च किया, राइट? तो इससे क्या होगा, पीपल टू पीपल कनेक्ट, कांटेक्ट बढ़ेगा, एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, और हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो और बेटर होंगे, राइट? तो ये एक पॉलिसी लेवल रिकमेंडेशन है, जहां पर सरकार इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक तरीके से इन्फ्लुएंस होकर के अपनी पॉलिसीज बना रही है। तो हमने क्या क्या चीजें अभी तक पढ़ी? हमने ये पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर के कोर फीचर्स क्या क्या थे, ये हमने जाना, राइट? उन कोर फीचर से उन कोर फीचर से हमें समझ क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंस क्या थी, राइट, उस समय पे, और इस सिग्निफिकेंस के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की मॉडर्न रिलेवेंस क्या है, इन तीनों चीजों को हमने समझा। साथ के साथ आर्किटेक्चर को देखने के बाद आप वहां की सोसाइटी के बारे में क्या जज कर रहे हैं, हाउ वॉज दिस सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको क्या समझ आ रहा है, ये चीज भी हमने पढ़ी। तो अगर क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन में आपसे एनालिसिस मांगे, यू कैन इजिली फ्रेम और राइट योर क्वेश्चन, राइट? नाउ एज प्रोमिस्ड, जब भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर से रिलेटेड, उसके रिलेवेंस से रिलेटेड, उसके सिग्निफिकेंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए, तो हमारे आंसर का एक टेम्पलेट कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले हम एक इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में ये जो पार्ट है इसे हम स्टैटिक कंसीडर करते हैं, राइट? तो स्टैटिक पार्ट में हम एक प्री प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन के साथ जा सकते हैं। सो इट इज बेटर टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद अ कोटेशन ऑफ वेरी फेमस फिगर, लाइक सर जॉन मार्शल की बात कर सकते हैं, या हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर सकते हैं, या मार्टिन व्हीलर की बात कर सकते हैं, किसी की। और ये तीनों नाम हम अपनी एनसीईआरटी में प्रीलिम्स में पढ़े हैं। अब जैसे बहुत ही सिंपल है, अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, राइट, कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, राइट, जो इंडस सिविलाइजेशन है, इट डिमॉन्स्ट्रेट दैट that the cities were very highly developed and orderly civilized। दो मेजर टर्म का उन्होंने यूज किया। उन्होंने कहा कि जो इंडस सिटीज है, दे वर हाईली डेवलप्ड एंड ऑर्डरली सिविलाइज्ड। अब अगर हमें कोटेशन लिखना है या इंट्रोडक्शन लिखना है, तो जरूरी नहीं है कि हम वर्ड टू वर्ड रिकॉल करें। If we remember that we are going to start our introduction with the name of Jawaharlal Nehru, Discovery of India, we are talking about Indus cities or Indus Valley civilization, and we said that Jawaharlal Nehru said in his book or in his work Discovery of India that Indus cities were highly developed and orderly civilized. This much is sufficient. Similarly, Sir John Marshall said about Indus Valley civilization that Indus civilization, it represent the earliest known urban planning or the earliest known urban culture in Indian subcontinent, right? So अगर क्वेश्चन इन आर्किटेक्चर पे ही आ रहा है, तो हम सीधे सर जॉन मार्शल को कोट करके अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? That according to Sir John Marshall, Indus civilization was the earliest known urban civilization or urban culture in Indian subcontinent, right? By starting your answer like this, you build an impact in the mind of copy checker। उसके बाद हम अपना मेन जो बॉडी है उसे डिजाइन करेंगे। मेन बॉडी में अगर वो कोर फीचर पूछ रहा है, 1 2 3 डाल के हम कोर फीचर लिख देंगे। सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो कोर फीचर को लिखते हुए हम सिग्निफिकेंस लिखेंगे। रिलेवेंस पूछ रहा है तो कोर फीचर को पॉइंट करते हुए उसके बाद हम उसकी रिलेवेंस लिखेंगे, तभी वो कनेक्ट हो पाएगी। यू नीड टू सब्सटेंशिएट बोथ थिंग्स विद ईच अदर, राइट? अगर सोसाइटी के बारे में पूछ रहा है तो हम सोसाइटी आर्किटेक्चर से सोसाइटी के बारे में क्या जानकारी मिलती है, ये आर्किटेक्चर के एक एक बिंदु को लिखते हुए तब बताएंगे कि हेंस वी आर सेइंग दैट सोसाइटी वाज इंक्लूसिव और यूनिफॉर्म। गॉट इट? इस तरीके से अपने आंसर को आगे बढ़ाएंगे। और ध्यान रहे, देयर आर फ्यू कीवर्ड्स एंड यू नीड टू मेंशन इट इन योर आंसर
दैट इज द स्टैंडर्डाइज कंस्ट्रक्शन, या जी सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, या पब्लिक गुड्स ओरिएंटेशन, और क्लाइमेट अडेप्टिव इंजीनियरिंग, या प्रोटो ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। अरे भाई, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ करके मीरान तक जा रहे हैं, उसके आगे बढ़ करके गल्फ ऑफ ओमान तक जा रहे हैं, मेसोपोटामिया तक जा रहे हैं, तो इट इज अ प्रोटो ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, राइट और नॉट? राइट? एंड वंस यू wrote your main body of your question, you can end your answer like the Indus architecture. It mirrors a sophisticated socio-economic system combining centralized planning, trade driven prosperity, public good provision, and climate responsive engineering. Right? Or be simpler term mein, if you want to write, you can simply write that Indus Valley civilization demonstrate that sustainable urban planning is not a modern intervention. It is a much better conclusion, right? That IVC demonstrate what? That sustainable urban planning is not a modern intervention, right? Or if you are talking about society, let's say हम significance की बात करें, society के बारे में बात करें, तो we can also write that the best cities are those that are designed for the people before power, right? Something like that, right? And the structure of Indus Valley civilization shows कि जो भी हम चीजें बना रहे हैं, it is for the sake of people, not for some superior or monarchist class, right? And that's how you can end your answer, correct? Although this discussion was centered around the architecture part, but I have added the current affair part as well in this discussion, which is about the dancing girl. Since the dancing girl is in news, the question they may ask is what she represent, right? And apart from representation, they can also connect this with the cultural continuity, right? She is what she is wearing, right? How she is standing in Tribhanga posture. It is a classical posture in which our classical dancer, like dancers of Bharatnatyam or Kuchipudi, stands. Sri Krishna in each and every painting, he stands in a Tribhanga posture itself, right? The ornament she is wearing, the technological aspect, right? The lost wax technique, right? All these things, it is a part of cultural continuity. And what she represent, what is the significance of it, this is also going to be the bonus point of this discussion, but we will cover it up in the next session, right? So till now, I hope you understood this whole architecture part very well. You also understood the basic answer template for your upcoming mains, how you need to start your question, the basic introduction, the keywords, a conclusion, and a main body, right? That's how we are going to continue our entire discussion. And we will finish up your art and culture module within 9 to 10 lectures, right? In this 9 to 10 lecture, your entire PYQ will be discussed, right? Your entire syllabus will be discussed, right? The notes you are seeing here, these notes will be given to you, and with every topic, I will also tell you the intro, the main body, and the conclusion, which is the basic answer template of each and every question, right? So that you can easily fetch 20 plus marks in this particular module, right? I hope you liked this entire discussion. So till then, keep on studying, keep on preparing. We will meet you in the next session. And till then, bye bye, everyone. See